Hey guys, Beast again from Geek Guys और आज की वीडियो में we are going to unbox a new phone that I have bought just from Flipkart right now. So ये फ़ोन जो है I got it for like 21,000 but after all the discounts and everything it was like almost around 18,000 rupees. और this is a 865 we are talking about. ये मेरे पास फ़ोन है. This is my LG G8X. This has the 855 और मेरे पास Poco Phone F1 है जो 845 है. तो मेरे पास स्नैपड्रैगन की 3 फ्लैगशिप जनरेशंस आई ऑलरेडी हैव जस्ट लाइक लिक्ड ऑल अपॉन, क्योंकि मेरे पास मैंने पोको F1 भी 2 ईयर्स से यूज़ कर रहा हूँ और 6-7 मंथ्स मेरे को LG G8X के साथ हो गए. सो नाउ एज आई एम ऑल अबाउट दैट अल्टीमेट पावर. So let's see which phone I have come across and if it is worth buying for that much amount. So in front of me is a box and I am really excited to check this phone out क्योंकि ये काफ़ी hyped phone था. It is like almost 1 year, इसको मार्च में ही रिलीज हुआ था पिछले साल and it was one of the few phones with the Snapdragon 865 and UFS 3.1 storage. इस फ़ोन में 8 GB of RAM है और 128 GB of internal storage है and it comes with a OLED display. So here it is. Let's keep this to the side. So it is the iQOO 3. So this phone was one phone that I was really looking forward, but इसका प्राइस जो था it was like way high क्योंकि ये 40,000 रुपीज़ के लिए इंडिया में रिटेल हुआ था and it had 2 variants. एक वेरिएंट था 4G और एक था 5G. तो 4G वेरिएंट इन्होंने ऑलरेडी अपने एंड से 5G कैपेबिलिटीज़ बंद की हुई थी 865 की, because 865 had native support for 5G but they choose not to include it. So let's just slice it open. It's quite a unique kind of box. So it has a kind of carbon fiber feel to it. और यहाँ पर the seal is okay. So it also has a high-res audio. So इसमें एक audio DAC है that supports high-res audio. और the price that I got it for, this is really amazing deal क्योंकि 865 around for you it is like 21,000 but I got it for around 18,000 something. So it was a really great deal that I couldn't even resist. I was not even thinking twice क्योंकि it was reviewed very well क्योंकि इसके जितने भी रिव्यूज़ थे उनमें कोई भी इश्यूज़ नहीं थे. I was curious about कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होने वाला है but the reviews are really great. At least मेरे पास LG G8X है, it does not have Android 11 and it has Android 11 out of the box in this device. So as you can see how crazy packing is this. So this is the handset and it is heavy. So let's keep this to the side. This is the IMEI number and everything. So here is iQOO. So they say not because someone is asking to you but because you want to. There is a lot of quotes here. So यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं. So this is the cable I guess. ये booklets are SIM ejector tool and a good silicone case I would say. Let's keep this to also the side. This is a hefty charger brick. So ये जो है it supports 55 watt of wired charging. That is insane. और यहाँ पर आई थिंक सो these are the earphones. So we also get iQOO branded earphones. So it has a 3.5mm jack जो कि एक quad DAC के साथ आता है, the same as the LG G8. No, I don't think so it is same but उसके जैसा ही है. So I also keep it to the side. Actually the cable is quite interesting. If let's open it up. So it is a pill shaped, as you can see it is a pill shaped cable. So ये basically इसलिए कि अगर आप गेमिंग कर रहे हो so you can just plug it in और आपका intrusive नहीं होगी ये केबल. So ये भी काफ़ी अच्छा है. So let's keep this also to the side and let's check out the handset. So ये है handset and where to open it from. Whoa. So it is glass all over and a screen protector is pre-applied. So on the top यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3.5mm jack है, noise cancelling headphone and there is a quad camera. So यहाँ पर एक 13 megapixel wide है, 13 megapixel 2x
and 48 megapixel main camera, and this is the I think so the fourth one is depth camera. यहाँ पर आपका जो है ये वॉल्यूम रॉकर्स है और पावर बटन, एंड दीज टू आर देयर मॉन्स्टर टचेस जो वो बोलते हैं एयर ट्रिगर्स हैं, एंड इट ऑल्सो हैज़ अ टाइप सी हेडफोन टाइप सी जैक, और यहाँ पर जो है सिंगल मोनो स्पीकर, दैट इज़ वन थिंग दैट आई एम अनॉयड अबाउट. एंड द डिस्प्ले इज़ OLED, but it is not high refresh rate. 60 Hz की डिस्प्ले है, it is not 120 Hz or 90 Hz, but it has a 180 Hz touch sampling rate. So वो एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है. So that is really good, और it is heavy, or it feels solid in the hand, or the amount of performance it has, that is also insane. So let's try to boot this up. So it is out of juice. So let me just top it up, और फिर जो है we'll continue the video. एंड यहाँ पर इसका जो साइन है सुपर वूक और समथिंग जो भी होगा इनका, दैट हैज़ कम. सो अब आपको पता लग जाएगा, यू विल गेट एन आइडिया कि हाउ फास्ट इट कैन गो. सो इट टुक ऑलमोस्ट 11 मतलब 11.5 मिनट लगे इसे 30% तक पहुंचने के लिए. सो लेट्स कैरी ऑन विद द सेटअप एंड लेट्स गो. तो गाइस आई जस्ट डिड अ टॉप अप, और ऑलमोस्ट इसको आई थिंक सो 12 या 11 मिनट्स लगे, एंड इट इज़ लाइक 31%. एज यू कैन सी राइट नाउ फ्रॉम हेयर, यहाँ पर 31%, इट इज़ ऑन 31% गाइस, एंड इट इज़ नॉट टू हॉट, मतलब नॉट हॉट, इट्स लाइक वार्म, बट इट इज़ लाइक ओके, इट इज़ लाइक ओके वार्म. सो एज यू कैन सी अभी जैसे अभी अनबॉक्स किया है, एंड इट इज़ लाइक अ फिंगरप्रिंट मैग्नेट राइट हेयर. सो या आई थिंक सो दैट केस इज़ अ लिटिल बिट नेसेसरी हेयर, और इट हैज़ अ टाइप सी लिप ऑल्सो है. सो इट इज़ नाउ. सो लेट्स गो थ्रू द सेटअप प्रोसेस, और लेट्स चेक आउट कि हमें क्या क्या मिलता है इस डिवाइस के साथ. इसमें आपको एक डेडिकेटेड की भी मिलती है यहाँ पर गूगल असिस्टेंट को इन्वोक करने के लिए. सो दैट इज़ रियली गुड. और केस जो है इट इज़ लाइक क्वाइट अ चॉन्की बॉय, और यहाँ पर एक स्लिट दे रखी है उन्होंने ऊपर ईयर पीस के लिए, बट इट डज़ नॉट हैव स्टीरियो स्पीकर. सो यहाँ पर आपको सिर्फ एक बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर ही मिलता है. सो गाइस दिस डिवाइस इज़ सेलिंग फॉर 25,000 रुपीज़, और मैंने इसके साथ जो है मोटो X4 जो अपना एक डिवाइस है वो मैंने एक्सचेंज में दिया है. सो दैट इज़ वाई आई गॉट सच अ ग्रेट डील ऑन दिस. सो इट इज़ सेटअप, और यहाँ पर इट हैज़ ऑलरेडी फाउंड अ सिस्टम अपडेट. सो यहाँ पर जो है आई जस्ट, एंड फर्स्ट थिंग द हैप्टिक्स आर रियली गुड. हैप्टिक्स यहाँ पर बढ़िया फील हो रही हैं. And just crank the brightness. So the brightness is really crazy. Brightness where it can go really high. So yeah, it is looking really great. See ये कितनी सारी permissions मांगता है the launcher only. So यहाँ पर I will use it for the main purposes. यहाँ पर मैं let's just move on display में जाते हैं. Let's turn on dark mode. That is really good. लाइटर एंड डार्कर. आप यहाँ पर मतलब शेड भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, हाउ मच यू वांट, एंड एंटी फ्लिकर. सो दिस इज़ रियली गुड, क्योंकि ये स्पेशली OLED डिस्प्ले के साथ बहुत इश्यूज आते हैं इसमें. इफ़ यू हैव द अल्ट्रा फ्लिकर, इफ़ यू हैव द फ्लिकरिंग इशू, तो आपको इट कैन गिव यू हेडेक्स एंड एवरीथिंग. दैट इज़ अ रियली ग्रेट थिंग. यहाँ पर गेम स्पेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, जस्ट लाइक द ROG फ़ोन. लेट्स मूव ऑन टू स्टोरेज. सो स्टोरेज एज यू कैन सी यहाँ पर 8 GB ऑफ रैम है, और हमारे पास 128 GB स्टोरेज है. अभी मैंने कुछ सेटअप नहीं किया है, सो इट इज़ शोइंग 114 GB इज़ करंटली अवेलेबल. सो या दिस फोन इज़ रियली अ ग्रेट थिंग, और द फर्स्ट थिंग आई थिंक सो आई नीड टू इज़ द पिक्सल लॉन्चर. एंड यहाँ पर काफ़ी सारा ब्लोटवेयर जो है इट इज़ गिवन टू यू. सो लेट्स सी इफ आई कैन अनइंस्टॉल इट. यस, इट इज़ अनइंस्टॉलेबल. So I just took some sample shots from this iQOO 3, और really the camera is really amazing. So guys ये है recording 1080p 60 fps पे, और इसमें I think so EIS ही है only, और इसमें एक रॉक स्टडी स्टेबलाइजेशन भी है
जो आप सिर्फ 1080p में यूज़ कर सकते हो, नॉट इन 4K। और वियर्डली अल्ट्रा वाइड में आप शूट नहीं कर सकते, बट ओनली एट द 2x ऑप्टिकल जूम। सो दिस इज़ द वीडियो ऑफ द नॉर्मल वन। नाउ आई विल स्विच टू 2x। सो ये है 2x ऑप्टिकल जूम, और ये 13 मेगापिक्सल का, ये भी 13 मेगापिक्सल का, एंड द मेन इज़ द 48 मेगापिक्सल। बट अल्ट्रा वाइड जो 13 मेगापिक्सल है, उससे आप वियर्डली आप जो है वीडियो नहीं बना सकते। तो गाइज ये है रॉक स्टडी स्टेबलाइजेशन, और इस टाइम आई एम रनिंग, बट एज यू कैन सी कि इस वीडियो में शेक नहीं है। सो एक्चुअली दिस इज़ रियली ग्रेट एंड इट इज़ एट 1080p 60 FPS। तो मैंने इसके साथ भी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वगैरह शूट की, एंड आई वॉज शूटिंग सम पोर्ट्रेट्स एंड एवरीथिंग, और मैंने वीडियोस भी शूट की। सो द कैमरा इज़ रियली गुड। और थोड़े बहुत जो मेरे को इश्यूज़ वगैरह दिखे हैं, द फर्स्ट थिंग इज़ आई कैन नॉट इंस्टॉल द पिक्सल लॉन्चर। पता नहीं क्यों इसमें इशू आ रहा है। एंड आई जस्ट गॉट द एंड्रॉयड 11 अपडेट, इट इज़ रनिंग ऑन द एंड्रॉयड 11 विच इवन दिस LG G8X डज नॉट हैव। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि iQOO ने अपने एंड से जो है बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर सपोर्ट रखा है अपने एंड से। बाकी स्पीकर इज़ द स्पीकर इज़ अ मोनो स्पीकर, बट एक्चुअली इट इज़ क्वाइट लाउड। सो मैं आपको एक एज एन एग्जांपल आपको जो है अपनी वीडियो जो है एक मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज़ माई रीसेंट व्लॉग। दिस इज़ ऑन द 100% वॉल्यूम। नॉट दैट कि ऑडियो इसकी ख़राब है, द सिंगल स्पीकर इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि उसकी वॉल्यूम जो है वो काफ़ी अच्छी है। एंड दिस पंच होल इज़ लिटरली वेरी स्मॉल। अगर आप इसका डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर जो है वो अगर यूज़ करते हो, सो इट विल नॉट इवन बी इंट्रूसिव। दिस हैज़ अ USB Type-C फ्लैप, बट अगर आप इसका चार्जर जो है वो यूज़ करते हो, सो द चार्जर डज नॉट गेट इंसर्टेड प्रॉपरली, क्योंकि ये फ्लैप जो है वो अड़ता है। सो दैट इज़ वन वियर्ड थिंग दैट iQOO शुड नोट। बाकी टॉकिंग अबाउट द चार्जर, इट इज़ इंसेन, और ये जो पिल शेप है, इट इज़ रियली हेल्पफुल। आई वॉज यूजिंग इट वाइल इट वॉज चार्जिंग एंड इट वॉज रियली ग्रेट। बाकी द ईयरफोन्स आर लाइक द रेगुलर अफेयर, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। बट आई हैव नॉट इवन टेस्टेड द DAC दैट इज़ देयर हाई रेज ऑडियो। इट इज़ मैंशनड है कि इसमें हाई रेज ऑडियो है, सो वो भी मेरे को अभी चेक करना है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इंसेन अबाउट दिस डिवाइस, एंड या अप टिल नाउ इट इज़ रियली गुड। और I have to do like intensive testing to like put it through its paces. बाकी अभी I have this 855, now I have the 865. So I will also compare these both devices, क्योंकि आपको एक जनरेशन लीप के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि how much better performance nowadays you are getting. स्पेशली कि दोनों जो फोन्स हैं वो 7 नैनोमीटर चिपसेट में हैं। दिस इज ऑन द 7 नैनोमीटर प्लस, बट इतना कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट एक्चुअली द मेन थिंग इज द GPU एंड द न्यू कोच दैट ARM हैज़ प्रोवाइडेड। रियली दे हैव नेल्ड इट। और वीवो का जो अपने एंड से उनके पास बैकअप था, दे हैव रियली यूज्ड दैट ऑल्सो। सो इसके फुल रिव्यू के लिए जस्ट स्टे ट्यून्ड, एंड आई गेस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। दिस इज बीन बीस्ट फ्रॉम Geek Guys, and hope to see you in my next video. Thank you guys.